नमस्कार आदाब, मैं जावेद अहमद और आप देख रहे हैं एमजी न्यूज नेशन। 2 फरवरी 2024 को शुक्रवार के दिन महानगर कोलकाता के मकतब जामा मस्जिद राजा बाजार ने अपना एनुअल अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम बड़ा शानदार और कामयाब तरीके से बनाया। मैं आपको बताता चलूं कि यह मकतब 2022 में चंद बच्चों को लेकर शुरू किया था, लेकिन आज लगभग 200 से 250 बच्चे और बच्चियां दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। इस मकतब का असल उद्देश्य ये है कि मोमिन दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम हासिल करे। इस मकतब के प्रेसिडेंट हाजी मोहम्मद यूनुस और सेक्रेटरी हाजी मोहम्मद शमीम साहब हैं। इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट कारी रूहुल अमीन और मुफ्ती जहरुल हक नुमानी थे। आइए इस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने क्या कहा सुनते हैं।
کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ سوال: اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ جواب: اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ سوال: ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ جواب: ہمارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سوال: ہمارے نبی کہاں پیدا ہوئے؟ جواب: ہمارے نبی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ گارجین حضرات کو دو کام کرنا ہے کہ مکتب چلانے والوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں۔ اس پرفتن دور میں خاص طور سے قرآنی مکاتب کا جو حال ہے یہ بہت برا ہے۔ ایسے ماحول میں اگر کوئی مکتب جاری کرتا ہے اور چلاتا ہے اور اسلامی تعلیمات سے بچوں کو روشناس کراتا ہے تو گارجین حضرات کو یہ احسان کرنا چاہیے کہ ان کا جہاں تک ہو سکے تعاون کرے، ان کی مخالفت کرے۔ تعاون میں یہ بات بھی داخل ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ترتیب کے ساتھ، مکتب کے اصول کے ساتھ مکتب میں بھیجیں اور پابندی کرائیں۔ یہ گارجین کا ایک احسان ہے مکتب کے اراکین پر۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ گارجین حضرات اراکین کے ساتھ محبت کا معاملہ کریں۔ محبت کا معاملہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر چلانے میں کہیں کچھ کمی کوتاہی ہوتی ہے تو گارجین حضرات کو چاہیے کہ اچھے انداز میں، اچھے لہجے میں ان سے بات کر کے ان کو بتائیں تاکہ وہ حضرات مکتب کے نظام کو اچھا سے اچھا بنا سکیں۔ یہ دو کام گارجین کو کرنا ہے، اپنے بچوں کو پابندی کے ساتھ مکتب میں ساری چیزوں کی رعایت کر کے بھیجنا ہے۔ یہ مکتب چلانے والوں پر گارجین کا احسان ہے۔ اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اگر مکتب چلانے والوں سے کہیں کچھ کمی کوتاہی رہتی ہے تو محبت کا معاملہ کرنا ہے، اچھے انداز میں پیش آ کر ان کو کہنا ہے تاکہ مکتب کا نظام بڑھیا سے بڑھیا ہو بنا سکے۔ كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ ہم سب تیرے گنہگار قصوروار اقراری مجرم بندے، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، نیک عمل کی توفیق نصیب فرما، بدعمالی سے بدعمالوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام شرور فتن آفات و بلیات سے پورے امت مسلمہ کی اس مکتب کی اے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مکتب کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ نفس کے فتنوں سے، انسان کے فتنوں سے، شیطان کے فتنوں سے اس مکتب کی پوری امت مسلمہ کی ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حاسدین کے حسد سے، ظالمین کے ظلم سے، باغیوں کی بغاوت سے، شریروں کی شرارت سے، مخالفین کی مخالفت سے، اعداء کی عداوت سے اے اللہ اس مکتب کی ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بچے یہاں آج مکتب میں آئے ہیں اے اللہ اسے محروم نہ فرما، اے اللہ اسے محروم نہ فرما۔ جو لوگ اس مقصد سے جڑ جائیں اے اللہ ان کی دنیا اور آخرت کو سنوار دے۔ اے اللہ یہاں کے پڑھنے والوں کو پورے طور سے کامیاب فرما، اے اللہ پڑھانے والوں کو بھی پورے طور سے کامیاب فرما۔ اے اللہ منتظمین حضرات جو اس کے لیے کوشاں ہیں اور جو لوگ اس کے لیے جس لائن کی محنتیں کر رہے ہیں اے اللہ سب کی محنتوں کو بے انتہا شرف قبولیت نصیب فرما۔ اے اللہ بے انتہا شرف قبولیت نصیب فرما۔ اے اللہ تعلیم سے آراستہ اور پاراستہ فرما۔
فرما, परवरदिगार आलम मांगने से ज्यादा अपनी साया निशान अता फरमा. ए अल्लाह हम सब के उठे हुए हाथों की लाज रख ले, अपने महबूब पैगंबर के सदक़े में तुफैल में महल अपने फजल करम से या करीम हम सब की दुआओं को कबूल फरमा. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम. सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह. मकतब जामा मस्जिद राजा बाजार के बारे में थोड़ा सा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए कुछ. अल्हम्दुलिल्लाह, ये राजा बाजार जामा मस्जिद के अंदर मकतब कायम हुई. ये करीब 28 साल पहले हम लोग का सफ़र हुआ सूरत में. वहाँ पे जाके जो मकतब का निज़ाम मदरसा निज़ाम देखा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा. देख करके हम लोग दिल में भी एक बात आई कि भाई हमें भी अपने इलाका में मस्जिद के अंदर में एक मकतब का जो है कायम किया जाए, ताकि बच्चों का फ्यूचर जो है दीनदारी वो अच्छा हो, बेहतर हो, और लोग दीन के रास्ते में चलने का जो है जद्दोजहद करें, कोशिश करें. और ये दीन पे वही सब चल सकेंगे जब दीन के उसको समझ हो. और दीन की समझ उस वक्त आएगी लोगों के अंदर में जब वो मकतब से ताल्लुक़ जोड़ेंगे. आज मकतब जो बताया जा रहा है बड़ों का जो बात है कि पूरे जितने भी मस्जिदें हैं पूरे दुनिया के अंदर, बल्कि हिंदुस्तान में बंगाल में नहीं कह रहा हूँ, पूरे दुनिया के अंदर जितने भी मस्जिदें आज जो हम देखते हैं कि जिस तरह बच्चे सुबह उठ करके इंग्लिश मीडियम स्कूल को जा रहे हैं, उसके भी गार्जियन जो सुबह उठ के लेके जा रहे हैं, ये इंग्लिश पढ़ाने के लिए गैर मजहब का जो है इल्म को देने के लिए इतना जद्दोजहद कर रहे हैं. और जो हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी नसीब फरमाएगा अल्लाह ताला, आखिरत भी हमारा बनेगा, दुनिया ही बनेगा, उसके लिए हमारा कोशिश बहुत कमज़ोर है. बात की है कि हर ईमान वाले भाई से कि मकतब का जरूर ध्यान दें और बच्चों को मकतब में जरूर डालें, ताकि बच्चा भी जब हाफिज़ कारी आलिम बन के निकले, मुफ्ती बन के निकले. अगर दुनिया पढ़ाई पढ़ता है तो पढ़े, उसके लिए कोई मना नहीं. अगर इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहे तो बने, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी. कुल कितने बच्चे हैं आपके मकतब में? जब हम लोग शुरू किए थे भाई, हम लोग जब तक शुरू हुआ था उस वक्त हम कम से 40 अभी जो पहले जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, अभी जो अभी एडमिशन हुई और शुरू करने से 60 बच्चे हो गए. क्या नाम हो आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है. मैं इस मकतब का सेक्रेटरी सदर में से हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जामा मस्जिद राजा बाजार के से जो अवार्ड एनुअल अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी किया गया, इससे आप अपने पल्लीवासियों को, देशवासियों को क्या वार्ता देना चाहते हैं? आज हम लोगों ने बच्चों को अवार्ड दिया है, एक अवार्ड सेरेमनी किया है. बच्चों को ये बताना चाहते हैं हम कि बच्चे आगे आप मुस्तकबिल में प्यारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर चलेंगे तो इस दुनिया में भी कामयाब होंगे और आने वाली ज़िंदगी में भी कामयाब होंगे. एक बहुत बड़ा तबका जो है वो स्कूल में पढ़ता है हमारे बच्चों का. तो हम चाहते हैं कि इस मकतब के ज़रिए उनकी ईमान की ताकत जो है बिल्कुल मजबूत रहे और किसी भी मोड़ पर कहीं भी जाकर उनका ईमान ज़र्रा बराबर भी ना डगमगाए. इसी की मेहनत की जा रही है. कुरान जो कि ज़िंदा मौजज़ा ज़मीन पे मौजूद है अल्लाह ताला की तरफ से, हम चाहते हैं कि उस कुरान को लेकर हम जिए, इस कुरान को लेकर हम मरें और हमारे बच्चे भी कुरान करीम में जो अल्लाह ताला का हुक्म है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें. आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सोहेल सिद्दीकी है. इस मकतब का किस पद पे हैं आप? मैं असिस्टेंट सेक्रेटरी हूँ. थैंक. मौलाना साहब, एक तरफ देश में मकतब और मदरसा पर हमला किया जा रहा, उसको नेगेटिव दिखाया जाता है, लेकिन आज इस मकतब का जो एनुअल अवार्ड सेरेमनी था, यहाँ पर देखा गया कि नहीं, बच्चों को सही रास्ता, ज़िंदगी सही रास्ता पर कैसे गुजरे ये सिखाया जाए. तो आप इस अवार्ड सेरेमनी के दिन से क्या वार्ता देना चाहते हैं उन लोगों को जो नेगेटिव कंसेप्ट रखते हैं? हम आज के इस मकतब के इजलास से उन लोगों को ख़ास तौर से इस तरह मुतवज्जह करना चाहते हैं जिनके जहन और दिमाग में ये कीड़ा घुस गया है कि मकतब और मदरसे में जो है आतंकवाद पैदा किए जाते हैं और इस्लाम जो है जिहाद और इन सब सारी चीज़ों की तालीम वहाँ देता है. ये बिल्कुल उनका दिमागी कीड़ा है. इससे हमारे इस्लाम को, हमारे मकतब को और हमारे मदरसे को ज़र्रा बराबर दूर का भी वास्ता नहीं है. आज के इस मकतब के इजलास से भी ये बात वाज़े हो गई. यहाँ देखा गया कि उस तरह की यहाँ कोई बात नहीं है. ये जो प्रोपगंडा लोग फैलाते हैं ये उनका एक जहनी मिजाज है और इस्लाम और मकातिब और मदारिस को बदनाम करना चाहते हैं
वरना हकीकत में इसकी कोई यहाँ गुंजाइश नहीं है। इस्लाम तो एक अमन पसंद और शांति वाला मजहब है, और हम मदरसे और मकतब से बच्चों को और इस लोगों को यही तालीम देते हैं कि यहाँ आकर देखो यहाँ क्या होता है। यहाँ सिवाय इसके कि दिन और आखिरत बताने के, अल्लाह उसके रसूल की मार्फत कराने के, पहचान कराने के, और आपस में एक दूसरे से मेल मोहब्बत के साथ रहने की तालीम देते हैं। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे गैर इस्लाम मुसलमान हो, कोई भी हो, सबके साथ एक मोहब्बत और प्यार और शफकत से रहने की तालीम देते हैं। हमारे ये इस्लाम में तो चूटी को भी मारने की इजाज़त नहीं है, बिला वजह एक चूटी को भी तकलीफ देने की इजाज़त नहीं है। तो ये मकतब और मदरसा कैसे उनके ख़िलाफ़ कोई तालीम दे सकता है और उनके ख़िलाफ़ प्रोपगंडा पैदा कर सकता है? ये इस्लाम मज़हब शांति का मज़हब है, हम इसकी तालीम यहाँ देते हैं और इसीलिए मकतब को कायम किया है। और तमाम देशवासियों को हम इससे यही सबक देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हमारा और कोई मकसद नहीं है।